सर, जब किसी बच्चे में ये डायग्नोज होता है कि उनको ऑटिज्म है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड लाइक टू टेल द पेरेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप ऑटिज्म टर्म से मत डरिए। ऑटिज्म टर्म ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का फ्यूचर, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ आई विल से, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि जब पेरेंट्स को मालूम चलता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म में है तो वो रात रात भर नहीं सोते हैं। करेक्ट, आई हैव सीन सो मेनी एंजाइटी होती है, सो मेनी पेरेंट्स आई हैव सीन। बट आई विल से आज के डेट में ये भी मैं देख रहा हूँ कि ऑटिज्म बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो जॉब भी करते हैं। यू कैन नॉट से कि ऑटिज्म टर्म से आपको डरना नहीं है, आपको समझना है उसके दैट इज बारे नॉट में। द एंड ऑफ लाइफ। हाँ, डेफिनेटली पहले उसके बारे में समझना है कि क्या है ऑटिज्म। आप थेरेपिस्ट से बात करो, आप डॉक्टर से बात करो, आप उसके बारे में अवेयरनेस जो है और थोड़ा सा इंप्रूव करो अपने, और अपने बच्चों का पोटेंशियल देखो। डेफिनेटली वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑटिज्म टर्म से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली घबराने की। So we talk about burnout in parents. So is the lack of proper planning the root cause of this burnout, or is it more related to keeping those unrealistic expectations? Both I can say. Lack of planning and unrealistic both, because जब तक आपका एक तो you have to think about this कि रियलिस्टिक, जो मैं भी बताया कि एक रियलिस्टिक होप होना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए जिसके थ्रू, और अगर वो टारगेट को फुलफिल करना है तो यू हैव टू गो थ्रू प्लानिंग। तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मिलते हैं। तो अगर आपका टारगेट ये है और प्लानिंग प्रॉपर है तो आगे आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं है। Namaskar and welcome to the sixth podcast from Special Stories. Now, while we are dealing with any neurodevelopmental disorder like autism, there are often multiple aspects involved into it. While on one hand, we talk about and focus on diagnosis, the treatment, and the therapy involved. At the same time, there is also a very less talked about but equally important aspect involved here, which is around the practical and the emotional aspects of living with an autistic child. Now, what we mean here is that, as a parent to a special child, we also need advice on certain aspects, including how to prepare ourselves for this long battle. What practical changes do I need to bring into my daily routine? What behavioral changes are required? How do I prepare a conducive environment at my home for my child? And the most important, how do I plan for the future of my child? And hence, we chose a topic which is very simple yet very relevant here, which is living with autism. So to talk more on this today, we are fortunate to host Dr. Ujjwal Kumar Dubey, who is one among the pioneers to start pediatric rehabilitation services in the northern India. He holds a master's degree in occupational therapy and comes with a very rich experience, clinical experience of more than 22 years in dealing with pediatric rehabilitation. His specialization include neurodevelopmental treatment and sensory integration. He is the founder of Bridging Barrier Child Development Center and is professionally associated with multiple setups, similar setups I would say, in and around Delhi NCR region. He has been actively contributing to the professional community by presenting research papers and delivering lectures at various pan-India forums. In fact, in recognition of his contribution and excellence in the field of occupational therapy, he was awarded with the best occupational therapy in this part of the world in the year 2019. So, Dr. Ujjwal, welcome to our podcast today. And we are really lucky to have you here, and thanks for accepting our invite to be part of this effort and agreeing to share your thought on this topic today. सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा विकास जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेट भी बोलूँगा, एंड थैंक यू सो मच स्पेशल स्टोरीज फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस नोबल काउज। Thank you so much, sir. The structure of the podcast is going to be, we have divided this podcast into 4 sections. The first one is going to be introduction, where we'll quickly, understand from Dr. Ujjwal about his journey, because he has more than 2 decades in this field. So I would understand from him how he has seen this, industry evolve. The second section is going to be overcoming the enigma of autism. Now, this is the section where we are going to talk about those practical and the emotional aspects of living with an autistic child. And third, we have named it as well planned is half done.
Now this is where planning comes into picture. And the fourth one is going to be advice, and eventually we'll conclude. So we move into our first section, which is the introduction. So Dr. Ujjwal, आपने इस फील्ड में 2 डिकेड से ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया, आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत हेल्प किया है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को इन देयर थेरेपीज और रिहैबिलिटेशन इन वेरियस कैपेसिटीज एंड इन वेरियस रोल्स. तो आप इस फील्ड को कैसे देखते हो इवॉल्व होते हुए ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स? Yes, over the last 2 decades, which I have seen, there is tremendous improvement in the therapeutic intervention, or not only clinical understanding, but awareness is also increased, acceptance is increased, parental involvement is very nice this time. And apart from this, the collaborative approach of the therapies, inclusive education, there are so many points which Correct. I have seen the evolvement. Correct. And apart from this, अगर मैं अपनी 15 ईयर्स बिफोर की बात करूं तो जब मेरा सेंटर था और हमारे पास जब बच्चे आते थे तो वो आते थे करीब 7-8 ईयर्स में हमारे पास आते थे, क्योंकि एट दैट टाइम क्या होता था कि मेन स्ट्रीम स्कूल जब जाते थे तो स्कूल की तरफ से ये कंप्लेन आता था. ओके. एट दैट टाइम हमारे पास बच्चे आते थे और उस समय उसका थेरेपी होता था. बट आज के डेट में हमारे पास 2 to 6 years का 90% केसेज हैं. तो दिस इज द changed which I have seen this. So that is, you're leading to a point called awareness. Yeah, definitely. Because आपके हिसाब से awareness लोगों में ज़्यादा हुई है. Yes, right. And thanks to various platforms, people like you, जो कि जिन्होंने अपनी इतने 2 decade इन्वेस्ट किए हैं इसमें. Right. Just to bring awareness and improvement among the people. Commendable job, sir. So but sir, आपको जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस वगैरह इम्प्रूव हुई हैं ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, बट आपके हिसाब से कुछ अभी भी गैप्स रह गए होंगे जो विच स्टिल नीड सम नर्चरिंग और इम्प्रूवमेंट. सो व्हाट आर सच गैप्स सर, एंड पर्सनली आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उन गैप्स को फिल करने में? देखिए, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट भी रहा है और नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट भी रहा है. अगर आप देखें तो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ये है कि जैसे मैं आपको बताया, कोलैबोरेटिव अप्रोचेस बढ़े हैं, इंक्लूसिव एजुकेशंस भी आज के डेट में स्कूल्स में आ रहे हैं, थेरेपी टेक्निक्स भी चेंज हुए हैं. आज के डेट में टेली थेरेपीज वगैरह आ गए हैं, आजकल डिजिटल असेसमेंट्स भी होने लगे हैं, पेरेंट्स अवेयरनेस बढ़े हैं तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा है. तो ये सब तो हमारा पॉजिटिव है. बट पॉजिटिव के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ तो निगेटिव कमियां हैं जिसको अभी भी सुधारना है. उस कमियों में अगर बोल सकते हैं कि अभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे स्कूल में उतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं. नाम का इंक्लूसिव एजुकेशन है बहुत सारे स्कूल में, और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली. या डेफिनेटली. एंड इसके अलावा जो जैसे आज के डेट में आप बता रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ कमर्शियलाइजेशन भी हो गए हैं जो पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के लिए. तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मेरे हिसाब से कुछ पेरेंटल बॉडी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इस चीज़ को तरीके से ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे, बिकॉज दे आर सो सर्टिफाई करे. या डेफिनेटली देयर आर सो मेनी अनप्रोफेशनल आल्सो हियर जो काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो बच्चों के फ्यूचर के साथ ये कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करना बहुत जरूरी है. Okay, so you see this field lack governance. Yeah, definitely. I will say it. Okay, sir. Great to know that, sir. Now, sir, talking about autism, the number of cases which are being reported worldwide, और खास करके भारत में, right, वो दिनों दिन ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. ना मेरा ये सवाल है सर कि क्या ये कारण है लोगों में अवेयरनेस की वजह से, या फिर हमारा स्क्रीनिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव हुआ है, हम अच्छे से डायग्नोज कर पा रहे हैं? मतलब क्या कारण जिसका ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट है, या आपको सही मायने में ऐसा लगता है कि नहीं, ये बच्चों में ऐसी ये ऑटिज़म जैसी चीज़ ज़्यादा डेवलप होने लगी है कंसिडरिंग आवर लाइफस्टाइल इन टोटलिटी? yes. तो क्या ये कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, उस कारण से केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर क्योंकि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए केसेस ज़्यादा? सर, ये दोनों चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं. डेफिनेटली दीज आर द फैक्टर्स यू कैन से कि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है. बट अगर मैं आज से 20 ईयर्स बिफोर जब मैं अपना बैचलर कर रहा था, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, नेशनल निर्तार जो कटक में है, वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च होते थे. बट यू विल नॉट बिलीव, आई हैव नॉट सीन सिंगल केसेस एट दैट टाइम ऑफ ऑटिज्म. Okay. I am telling about the 2004, and at that time I have read it. मतलब theoretically थ्योरी में पढ़ रहा था, बट प्रैक्टिकली आई हैव नॉट. केसेस नहीं थे. तो डेफिनेटली रिसर्च इंस्टीट्यूट तो उस समय भी थे, बट कहीं ना कहीं केसेस बड़े हैं, और बड़े हैं तो उस वजह से अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. ऐसा नहीं कि उसमें रिसर्च नहीं थे. और डेफिनेटली ये सब फैक्टर्स हैं जो आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा
कह सकते हैं कि जो हमारा जो आजकल जो मोबाइल और फोन ये सब जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ये सब मोर स्क्रीन टाइम, हम स्क्रीन टाइम कह सकते हैं कि उसकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके इस तरह तो आप कह रहे हो दोनों ही कारण है, एक तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, राइट, और साथ ही साथ केसेस भी बढ़े हैं क्योंकि हमें लाइफस्टाइल उसको इम्पैक्ट करता है कर रहा और किसी बच्चे के डेवलपमेंट को। है। यस, राइट। Thank you, sir. With that, thank you for that input, sir. With that, we move to our next section, which is how to overcome the enigma of autism. This is going to be very, very important section. So, sir, जब किसी बच्चे में ये डायग्नोज होता है कि उनको ऑटिज्म है, so what is the first thing you'd like to tell the parents when you know they discover that the child has autism? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप ऑटिज्म टर्म से मत डरिए। ऑटिज्म टर्म ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का फ्यूचर, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ आई विल से मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि जब पेरेंट्स को मालूम चलता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म में है तो वो रात भर नहीं सोते हैं। Correct. आई हैव सीन सो मेनी एंग्जाइटी होती है। सो मेनी पेरेंट्स आई हैव सीन, बट आई विल से आज के डेट में ये भी मैं देख रहा हूँ कि ऑटिज्म बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो जॉब भी कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट से कि ऑटिज्म टर्म से आपको डरना नहीं है, आपको समझना है उसके That is बारे not में। the end of life. हाँ, डेफिनेटली पहले उसके बारे में समझना है कि क्या है ऑटिज्म। आप थेरेपिस्ट से बात करो, आप डॉक्टर से बात करो, आप उसके बारे में अवेयरनेस जो है और थोड़ा सा इंप्रूव करो अपने, और अपने बच्चों का पोटेंशियल देखो। डेफिनेटली वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑटिज्म टर्म से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली घबराने की जरूरत नहीं। राइट सर। सर, किसी भी पेरेंट के लिए उसी में ऐड करूँगा कि ये बहुत एक इमोशनल जर्नी भी होती है, राइट, क्योंकि एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो व्हाट आर दोज इमोशनल चैलेंजेस दैट यू हैव सीन इन योर पेरेंट्स, कि कौन कौन से चैलेंज से वो गुजरते हैं, एंड व्हाट इज योर सजेशन टू दोज पेरेंट्स टू ओवरकम दोज चैलेंजेस? या डेफिनेटली चैलेंजेस, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि आई हैव सीन द चैलेंजेस विद इन फैमिली। लाइक अगर एक फैमिली, अगर किसी के बच्चे का ऑटिज्म है तो उसी फैमिली में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नो ये क्या है, इस तरह क्यों इशूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा डेफिनेटली सोसाइटी में अलग अलग तरीके का एडवाइस आता है आपको कि बच्चे के साथ ये करो, बच्चे के साथ वो करो, आप इसको ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो। तो ये सब जितने भी इमोशनली चैलेंजेस आते हैं, कुछ पेरेंट्स के ऊपर भी ये बता दिया जाता है कि आपकी वजह से ये हो रहा है, आप ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से बच्चे में इस तरह का इशूज़ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ से थोड़ा सा अलग रहना है। अलग रहना इन द सेंस कि उस हिसाब से आपको कॉप अप करना है, आपको बच्चे पे ध्यान देना है, ना ही कि सोसाइटी पे आपको ध्यान देना है। अगर आप सोसाइटी अवेयरनेस के लिए डेफिनेटली अगर कर सकते हो, डेफिनेटली आप करो। बट आई विल से कि आप बच्चे का पोटेंशियल्स देखो, बच्चे का स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस भी देखो, और फिर आगे बढ़ो मेरे हिसाब से। वेरी वेल सर। और एक इसमें किसी भी पेरेंट के लिए ना सर एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, फ्रॉम अ पीरियड ऑफ आई वुड से कंफ्यूजन एंड फियर टू कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। राइट। तो इसमें इस ट्रांजिशन पीरियड के लिए टू यू नो टू मेक इट स्मूथ, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि लर्निंग, आपको उसके बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बच्चे के पोटेंशियल्स के बारे में समझना पड़ेगा। एंड बच्चे में स्ट्रेंथ क्या है, आप समझ रहे हैं कि जैसे वीकनेस है उस पर आप काम कर रहे हैं, बट स्ट्रेंथ क्या है। अभी अगर आप जैसे पिछला 10-15 ईयर्स और अभी में बात करें तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। उसमें क्या होता है कि बच्चे को आप नॉर्मल कर दो। मैं आज के डेट में देख रहा हूँ कि पेरेंट्स समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, मतलब नॉर्मल नहीं बोल के कि नहीं इसका स्ट्रेंथ पे आप काम करो, कि नहीं इज हैविंग दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन जो आज के डेट में अच्छा सिंगर बना हुआ है, अच्छा जॉब कर रहा है, कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ को समझते हुए अपना जो वो प्रॉब्लम है, बच्चे का जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मैनेज करते हुए स्ट्रेंथ्स में आगे बढ़ना है, तो ताकि बच्चे आगे चल के इंडिपेंडेंट। तो जो आप कह रहे हो सर, जो फियर और एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी होता है नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ कि मे बी एक स्पेशल फादर हूँ सर, कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसको कैसे सेटल करेंगे, क्या वो ठीक भी होगा नहीं होगा। तो उसके लिए जैसा आपने बताया कि आप होप लूज मत करो, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आपके खुद के एक्सपीरियंस में आप बता रहे हो जिसमें दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। तो आई थिंक द मंत्रा हियर वुड बी टू स्टे पॉजिटिव। ओके, थिंग्स आर क्यूरेबल with support from people like Dr. Ujjwal. Things do improve, and you know the child may grow up well and have a good future as well, and most importantly he or she may become independent. Yeah, right. Okay sir. हमने इस टॉपिक को ऑलरेडी टच किया है सर कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये बोलना बहुत आसान है कि एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ आपके बच्चे को इशू है, बट एक माँ बाप ही जान सकता है कि कितना मुश्किल है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दे डिडंट एक्सपेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम।
तो उस एक्सेप्टेंस के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स उस चीज़ को समझ ले कि इसमें प्रॉब्लम है तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप उसको समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड, बच्चे को समझ पा बच्चे को आप समझ पा रहे हो, बच्चे को समझ पा रहे हो, बच्चे के बारे में आप जान पा रहे हो और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। उसमें अभी क्या चाहिए एट दैट टाइम, किस टाइप का इंटरवेंशन चाहिए। जब तक उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं एग्जांपल बताता हूँ आज के डेट में, अभी 3 दिन पहले की बात है कि पेरेंट्स, जैसे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, थेरेपी करा रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि वो स्कूल में उन्होंने नहीं बताया, माइल्ड केसेस थे, उन्होंने बताया नहीं, तो अब हुआ क्या कि अब स्कूल में उनको अब वो लोग वहाँ पे जब स्क्रीन कर रहे हैं, मतलब स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब वो वरीड हो गए हैं कि अब क्या बोलना है स्कूल में जाके, अब हमारे पास आ रहे हैं। तो थिंग इज दैट कि आप खुल के आप बात करो, एक्सेप्ट करो कि उनको ये लग रहा है कि मैं किसी फ्रेंड को नहीं बताई हूँ, या अपने फैमिली में नहीं बताया, फैमिली में नहीं बताई, इस तरह का इशूज है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका कैसे मालूम चलेगा कि रियली में उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले आप एक्सेप्ट करो खुद में, डेफिनेटली, तभी आप औरों को भी समझा पाओगे कि ठीक है, जो है सो है, वी आर डीलिंग विद इट, देयर आर वेज टू डील विद इट। सर हमेशा कहते हैं कि चेंज ऑलवेज बिगिंस एट होम। सो व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस वी एज पेरेंट कैन ब्रिंग इनटू आवर डेली लाइफ व्हिच कैन हेल्प आवर चाइल्ड इन लॉन्ग रन इन दिस जर्नी? आई विल से, देखो आज के डेट में आपको मालूम है कि पेरेंट्स आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मदर फादर वर्किंग होता है। आई एम ऑलवेज टेलिंग टू द पेरेंट्स, गिव द क्वालिटी टाइम। ओके, यू हैव नो मच मोर टाइम, बट जो भी आपका टाइम है, वो एक तो क्वालिटी टाइम देना है बच्चे को। नॉट ओनली लाइक कुछ एक्टिविटी बेस्ड नहीं, आप उसके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करो, थोड़ा प्ले करो। डेफिनेटली आप जब क्वालिटी टाइम देंगे तो बच्चे के बारे में आपको समझ में आएगा। दूसरा, एक रूटीन बनाए बच्चे का, इट विल बी मोर, क्योंकि स्ट्रक्चरल रूटीन होगा तो बच्चे में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डेवलप होगा, बच्चे समझेंगे इस चीज़ को, अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो एक रूटीन डेवलप करना जरूरी है घर में। दूसरा बात कि जितने भी लोग घर में हैं, सब उसके साथ कम्युनिकेट करें। ये नहीं कि सब अपने अपने बस मोबाइल मान ले कि नहीं ये तो ऐसा ही है करके, डेफिनेटली कि नहीं, माँ कर रही है तो मुझे नहीं करना है। तो मुझे लगता है इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मदर हो, फादर हो या ग्रैंडफादर, अगर फादर मदर साथ में रह रहे हैं तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट, सबका रोल है अपना, इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं घर में कुछ इस तरह का माहौल आप बनाएं ताकि बच्चे को लगे कि नहीं, हम अकेले नहीं है। और सर, जब रूटीन की बात कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसका जो इंटायर डे होता है, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, जो भी, उसको आप एक रूटीन बना लो कि मुझे इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। जैसे आपने बताया कि यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, सो मेक इट अ हैबिट कि फादर मदर या घर में जो भी लोग हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर विद द चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। रूटीन फॉर द प्ले, रूटीन फॉर द सेल्फ केयर, रूटीन फॉर द फूड। सो रूटीन होना चाहिए, तरीके का रूटीन आप बनाएंगे कि सुबह शाम तक मुझे क्या करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रूटीन आपका पक्का होगा, बट डेफिनेटली एक माइंड में आपका रहेगा तो इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द चाइल्ड। ओके। एक और हमारी धारणा होती है सर कि हम अपने बच्चों को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, राइट, ठीक है, बट जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ कुछ कमियां हैं, तो वो कंपैरिजन आपको कहीं ना कहीं बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट कंपेयर बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। यस, हमारा बच्चा भी डिफरेंट है, हाँ थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स है हमारे बच्चे में, बट आप जब तक कंपेयर करते रहोगे आप में वो ना एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेटली और आपके बच्चे में जो स्ट्रेंथ है ना, वो दूसरे बच्चे में शायद नहीं है। उस बच्चे में कुछ और स्ट्रेंथ है, आपके बच्चे में कुछ और स्ट्रेंथ है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। कंपेयर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि जितना आप कंपेयर करेंगे, और सही बोलना कि आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, तो आपको कंपेयर नहीं करना है, बच्चे का पोटेंशियल देखते हुए आगे बढ़ना। और हमने बात की सर पब्लिक जजमेंट और सोशल स्टिग्मा। राइट, अगेन हमारी सोसाइटी अपने ढंग से सोचती है, बट हमें एज ए पेरेंट उसको कैसे टैकल करना चाहिए? मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद सच काइंड ऑफ थिंग इन आवर सोसाइटी? इसमें अब आप कोशिश करना है पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगा, कोशिश ये करना है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पेरेंट्स एक दूसरे पेरेंट्स से शेयर करते हैं, उस ग्रुप में इन्वॉल्व हों ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस अगर सोसाइटीज़ कुछ आपको एडवाइस दे रहा है जो लगता है कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस एडवाइस को लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सोसाइटी के लोग अगर समझे तो डेफिनेटली आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं। बट कोशिश ये करिए कि अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने का, अपने क्लोज वन से कम्युनिकेट करने का, ताकि वो समझे बच्चे के बारे में, क्योंकि क्लोज वन ज़्यादा अच्छे से समझेंगे मेरे ख्याल से। जैसे आपने बताया कि ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे सिमिलर पेरेंट्स ग्रुप आप ज्वाइन करें, आप थेरेपिस्ट से बात करें, जो आपके थेरेपिस्ट हैं उनसे आप बात करें, तो उस तरह के लोगों के साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।
सर इन चीज़ों के लिए कोई काउंसलिंग भी होती है क्या? जैसे आप लोग भी ऐसे कोई काउंसलिंग देते हैं पेरेंट्स को कि हाउ टू ओवरकम विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? या डेफिनेटली सर, हमारे यहाँ काउंसलिंग भी होती है, बहुत जगह होती है काउंसलिंग, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग होती है कि हाउ टू टैकल विथ योर चाइल्ड, और आपको क्या करना है, आपको अपने लिए क्या करना है, कैसे आपको मी टाइम देना है, तो इस तरह का चीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है बच्चे में इस तरह इशूज़ हैं तो पेरेंट्स पूरा उसी में लगे हुए हैं, बट अपना भी टाइम देना होता है, बिकॉज आपको भी अपना हेल्थ देखना है, क्योंकि आप देखने वाले आप ही हो बच्चे को। एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है सर कि ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ या तो वो नहीं के बराबर बोलता है या कम बोलता है, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हाउ टू स्टैब्लिश दैट कम्युनिकेशन विद सच चाइल्ड हु इज़ ईदर नॉन वर्बल या आई मीन जस्ट माइल्ड। हाँ, Yes, you can say. तो ऐसे केसेस में हाउ टू अप्रोच दैट कम्युनिटी टू स्टैब्लिश दैट Yeah, कम्युनिकेशन? there are so many techniques to approach this. Like हम लोग कार्ड के थ्रू यूज़ करते हैं, कुछ कम्युनिकेशंस बोर्ड होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, आजकल AAC आया हुआ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। पेक्स जो पिक्चर एक्सचेंज मेथड्स होते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारा आजकल डिजिटल बहुत सारा ऐप आया है जिसके थ्रू उसका कम्युनिकेशंस को। बट सर प्रैक्टिकल जो मैं घर पे कर सकता हूँ वैसे कोई चीज़ मतलब डे टू डे लाइफ में हम कैसे प्रॉम्प्ट करें बच्चे के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस सपोर्टिंग थिंग्स? डिपेंड्स। देखो इसमें भी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट थिंग नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ। जैसे होता है चाइल्ड कितना समझ रहा है आपका बात को, डेफिनेटली कम्युनिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। काम भी जब होता है, जब पेरेंट्स हमारे पास आते भी हैं तो सबसे बड़ा इशूज़ कम्युनिकेशंस का ही होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में तो अभी आपको कुछ अदर चीज़ यूज़ नहीं करना है, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू ही उसको करना है। तो कम्युनिकेशन में सिंपल इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट उससे ले सकते हैं, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप उसमें थोड़ा सा लेवल। तो आप में उसमें पहले क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, डेफिनेटली फोर्स हिम और हर, ताकि वो इवन इफ ही और शी इज आस्किंग फॉर समथिंग ensure that he himself is trying to communicate. Yeah, definitely I advise to the parents कि मान लिया कि एग्जांपल एक जूस या ग्लास कोई पानी ले रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको पहले आप उससे आप बताओ कि दिस इज वाटर, मीन्स ऐसे नहीं कि पानी ऐसे सारे से मांगा तो आप पानी दे दिए, पहले आप उसके बारे में 2-4 बार आप बताओ ताकि उसका माइंड में वो सेट हो कि नहीं दिस इज द वाटर। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का मेथड्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ाना। पहले 1 वर्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 वर्ड्स, सो ग्रेजुअली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। या डेफिनेटली। Okay, sir. Now we move to a third section, which is about planning. So it is called "Well planned is half done." सर आप ये मानोगे कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, नॉट ओनली डीलिंग विथ न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स, कोई भी सिचुएशन हो, प्लानिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। राइट। And I'm hopeful and I assume that for managing a autistic child, we need proper planning. Right. Okay. So with that, and one important aspect of this planning is setting up goals. Right. Be it the short-term goals or long-term goals. So can you give us some examples of these short-term and long-term goals? Because we should not mix these two things. Yeah, definitely. तो हमें short-term goals वो हुए जो हम कुछ पीरियड के लिए सेट करते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये हुई कि मैं उसके लॉन्गर टर्म में जाकर के कैसा वो होगा नहीं होगा, उसको कैसे मैं इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में। तो आप उस पर थोड़ी इनलाइटन करें। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करें, डेफिनेटली जैसे मैं आपको बताया कम्युनिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो आई कॉन्टैक्ट पे काम करना है आपको, इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग पे काम करना है, अंडरस्टैंडिंग पे काम, आइडेंटिफिकेशंस पे आपको काम करना है। सब शॉर्ट टर्म गोल्स में कुछ सेंसरी इशूज़ हैं तो सेंसरी ओवरकम करने के लिए उसके ऊपर काम करना है कि हाउ टू टैकल विद द सेंसरी इशूज़। तो ये सब सारा शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि बच्चे में अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है तो पहले आपको रेस्टलेसनेस कम करना है, बच्चा अगर स्टेबल होगा तभी वो अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं कि कुछ मोटर स्किल्स का भी प्रॉब्लम होते हैं, कुछ बच्चे एज स्पेसिफिक। सर ये टाइम बाउंड रखते हैं नॉर्मली हम कि हाँ अगर आपने भी 20 चीज़ें हमें बताई तो उसमें से आप इन आइटम्स पे पहले फोकस करो एंड दीज आर योर माइलस्टोन डेट्स। डेफिनेटली वही मैं बताया कि बच्चे के हिसाब से हम लोग प्लानिंग सेट करते हैं कि बच्चे में मैं देखता हूँ कि कितना क्या पोटेंशियल से, एज क्या है बच्चे का, है ना, और कंसर्न क्या है पेरेंट्स का। जो पेरेंट्स को लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न है तो पहले उस कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर काम करते हैं कि वो कंसर्न कहाँ से आ रहा है। तो अगर ऐसे आप देखें तो जैसे मैक्सिमम केसेज में अगर मैं बोलूँ, हालांकि सारे केसेज में नहीं, कि बच्चे रेस्टलेस होते हैं, मतलब एक जगह नहीं बैठते हैं, इधर से उधर करते हैं। तो अगर आप मतलब प्लान शुड बी रिलीवेंट, अगर आप उसको डायरेक्ट बोलोगे नहीं स्पीच पे काम करना है तो डेफिनेटली वो स्पीच पे काम नहीं होगा जब तक उसका रेस्टलेसनेस पे काम नहीं करेंगे। बॉडीली जब तक बच्चा स्टेबल नहीं होगा, जब तक वो
आपका बात को ध्यान से सुनेगा नहीं, जब तक आपका इंस्ट्रक्शन को ध्यान से लेगा these are the तब तक ground preparatory work you Definitely, need to आपको do. बेस पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह बात करें तो डेफिनेटली सेंसरी जो हमारा एक बेस होता है वो भी, उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो उस पर भी आपको काम करना है साथ साथ कम, क्योंकि कम्युनिकेशन जो इशूज आ रहे हैं वो अगर सेंसरी इशूज की वजह से कम्युनिकेशन आ रहा है तो डेफिनेटली पहले आपको Okay, सेंसरी तो पहले रूट कॉज पता करो, Yeah, उसको definitely. एड्रेस करो, and then we'll go on these. राइट। And how about the long term goals, sir? सो अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो डिपेंड्स करता है। अगर सेल्फ केयर की बात करें 2-3 इयर्स में जनरली पेरेंट्स इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि 2-3 इयर्स का बच्चा है तो क्या सेल्फ केयर करना है, तो पेरेंट्स खुद कर देते हैं। बट आफ्टर दैट डेफिनेटली सोचना चाहिए 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद कि बच्चे में सेल्फ केयर अगर नहीं आ रहा है तो उसको उस पर काम करना चाहिए, लाइक ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, फीडिंग, खुद सेल्फ फीडिंग खा रहा है कि नहीं बच्चा, टॉयलेट जा रहा है कि नहीं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इस पर आप सेल्फ केयर पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात करें डेफिनेटली प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, एकेडमिक की बात करें, बिहेवियर आगे चल के कैसे इमोशनली कैसे बैलेंस कर पाए, तो देयर आर सो मेनी एरियाज जिस पे आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। Okay. So being a special father myself, we all have hopes कि मेरा बच्चा भी कल जाके ये बने, वो बने, ऐसा करे, वैसा करे. But at the same time, we need to be realistic, right? कि आपने acceptance की बात करी, तो हमें realistic थोड़ा होना पड़ेगा. राइट। So how do we balance these two things, hope versus being realistic? देखिए, होप अगर होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, होपलेस हो जाने से तो कुछ नहीं होगा। देयर आर सो मेनी केसेस आई हैव सीन कि पेरेंट्स होपलेस हो गए, मतलब अब कुछ नहीं होने वाला है ना, तो उसमें तो कुछ नहीं आप कर They have given up. उसमें, हाँ डेफिनेटली वो, बट जब होप रहेगा तभी आप आगे बढ़ोगे। होप सिर्फ होप ऐसे नहीं रखना है कि हमारा बच्चा तो ये बना देना वो बना देना, डेफिनेटली वो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो जैसे मैं बताया कि नहीं, देखना होगा आपको उसका स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, उसका वीकनेस को देखना पड़ेगा, कौन सा वीकनेस पे आप काम कर सकते हो, तो वो प्रॉपर रियलिस्टिक होना चाहिए। आज के डेट में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लोग हो गए हैं बिकॉज ऑफ, मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया और ये सब के थ्रू की मिराकल बहुत सारे होते हैं ना कि नहीं मैं तुरंत से मैजिक वाला, तो डेफिनेटली वो अनरियलिस्टिक है। उससे आप फ्रस्ट्रेशन ही होगा, आपका फाइनेंशियली भी आप प्रेशर में आएंगे और फ्रस्ट्रेशन ही होगा। तो बेटर है कि इस चीज़ को आप समझिए और रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, और होप तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप कह रहे हो कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट। मेरे हिसाब से आपको पहले विथ टाइम इवेलुएट करते रहना चाहिए कि मेरा बेटा जो है या बच्चा जो है वो माइलस्टोन के साथ से कितने आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, राइट। एंड देन यू सेट द नेक्स्ट सेट ऑफ या गोल्स। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू मेक द गोल्स। अभी से आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर 4 सकते। इयर्स का बच्चा और 3 इयर्स का है, आप सोचो कि मुझे ये बनाना है, ये तो कोई नहीं बना सकता। अगर ऐसे भी आप देखें नॉर्मल साइड तो वो नहीं कर सकते, तो वो चीज़ है। Okay, sir. So we talk about burnout in parents. Right. Okay, so is the lack of proper planning the root cause of this burnout, or is it more related to keeping those unrealistic expectations? Both, I can say. Okay. Lack of planning and unrealistic both, because जब तक आपका एक तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि रियलिस्टिक, जो मैं भी बताया कि एक रियलिस्टिक होप होना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए जिसके थ्रू, और अगर वो टारगेट को फुलफिल करना है तो यू हैव टू गो थ्रू प्लानिंग। तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मिलते हैं। तो अगर आपका टारगेट ये है और प्लानिंग प्रॉपर है तो आगे आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं होता है। बट हाँ, ऑन टाइम करने का मतलब ये नहीं कि आप 4 साल 5 साल के बाद उसको करने जा रहे हो। जैसे आप बताइए, स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग करना है और उस हिसाब से आपको आगे। तो आपको एक दिशा की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है, राइट। अदरवाइज यू विल लैंड नोवेयर। राइट। आप सब दिशाओं में इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे, कुछ अचीव नहीं होगा। सो प्रॉपर प्लानिंग एंड कीपिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज द मंत्रा। और सर जब हम प्लान बनाते हैं तो हम ऑलवेज प्लान बी भी बनाते हैं। राइट। तो इन केसेस में भी क्या हम प्लान बी भी शुरू से बना के चलते हैं, और कितने समय के बाद नॉर्मली हम बोलते हैं कि नहीं, साइड टाइम, इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग लेट अस स्विच टू प्लान बी? देखिए, मैं इस चीज़ को वो एग्री नहीं करता हूँ कि अभी से मैं प्लान बी को सोचूं। अंडरस्टैंड, जैसे मैं बताया कि रियलिस्टिक अगर स्टार्टिंग से ही आपको समझ में है, अंडरस्टैंड है कि नहीं बच्चे हमारा जो है पोटेंशियल्स हैं कि इसमें आगे बढ़ेंगे, बाय द टाइम बिंग अगर जो आप कर रहे हैं अगर लग रहा है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल की बात करें, मैं एज एन ओटी या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं,
अभी अगर बोलेंगे कि मेरा बच्चा 4 साल के बाद क्या होगा, नहीं नहीं बता बता सकते सकते। हैं, दिस इज राइट थिंग। बट हाँ, डेफिनेटली कोशिश करेंगे, उसके अंदर जो पोटेंशियल्स हैं उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे। और जब एक टाइम में आके, जब क्या होता है कि अगर आपका जो टारगेट है, और जो कभी कभी होता है कि फ्लैट हो जाता है चीज़ ना, ग्राफ आपका फ्लैट हो जाएगा, उसके आगे बढ़ नहीं रहा बच्चा, एट दैट टाइम डेफिनेटली गो थ्रू प्लानिंग बी। बट प्लान बी वो उस समय ही होगा, मतलब वो आप पहले से वो प्लान बना के नहीं चल सकते। कि एक होता है ना कि कोई गेम में कि हमने प्लान ए में नहीं हुआ तो नॉर्मल प्लान वैसे बी, ही करते हैं। बट हाँ, बट इस केसेस में यहाँ पे आप प्लान बी अभी से नहीं बना सकते, अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट्स है। तो सैचुरेशन पे थोड़ा आने दो, राइट कि उसके आगे अगर आपके हिसाब से, आपके थेरेपिस्ट के हिसाब से बच्चा अगर आगे उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राइट, देन इट्स टाइम टू स्विच टू प्लान राइट। और प्लान बी में भी ये नहीं सोचना है कि मैं अब कुछ नहीं होने वाला है, अंडरस्टैंड। अब जैसे एक पाथ चेंज कर रहे हो, करेक्ट, जस्ट यू आर लाइक चेंजिंग द पाथ एंड उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, मंजिल वही है, आपकी रास्ता बदल जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एंड सर, नॉर्मली आपकी नज़र में सर वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको लेकर के आप किसी भी प्लान का या आपके थेरेपिस्ट का आप सक्सेस डिसाइड करते हो? देखिए, पैरामीटर्स में अगर बात करें तो कम्युनिकेशंस, मोटर स्किल्स, सेंसरी इशूज बच्चे में जो होता है, सेल्फ केयर स्किल्स, प्ले स्किल्स, तो ये सारा स्टार्टिंग का जो पैरामीटर्स होते हैं स्पेशली ये होते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है कहीं ना कहीं ये होता है। तो इस तरह का पैरामीटर्स लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, बच्चे के प्रॉब्लम के हिसाब से काम करते हैं। इसके बाद फिर पैरामीटर्स वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। अगर आगे का बात करें तो प्री वोकेशनल्स की बात करें या बिहेवियर इशूज़ अगर आ रहे हैं बच्चे, उस पर भी काम करते हैं हम लोग। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो वहाँ पे एकेडमिक की बात करें तो ये सब सारा पैरामीटर्स ही होता है। एकेडमिक में भी अगर ब्रॉड में जाएँ तो प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, सो मेनी थिंग्स। ओके सर, हाउ डू वी नो whether any child may eventually live independently or semi-independently or require lifelong support? ये पता करने का क्या तरीका है? Definitely it depends on the severity of the problems, है ना। और दूसरा एज है ना, कि आप एज के बाद ठीक है, स्टार्टिंग में अगर छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल हैं, चाहे जितना भी सीवियर हो, डेफिनेटली हम लोग स्टार्टिंग का ही उसके ऊपर वर्क करते हैं। करेक्ट। बट एक एज के बाद क्या होता है कि आपको धीरे धीरे खुद मालूम चलने लगता है, एज ए थेरेपिस्ट भी आपको बताते हैं या डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि नहीं, अब आगे आप मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे जनरली होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जैसे मैं बताया कि ऑटिज्म में काफ़ी वेरिएशंस हैं, कि अगर मैं 2 ऑटिज्म में आपके सामने खड़ा कर दूं तो यू कैन नॉट से कि दोनों को ऑटिज्म है ना। बहुत सारे ऑटिज्म इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑटिज्म कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। हमारे पास भी आज से 20 साल पहले जो बच्चे हमारे पास काम कर रहे थे, हम जिसके साथ काम किए हैं, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरा वो ऑटिज्म बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, कुछ है कि वो इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो वो टाइम टू टाइम आपको डिसाइड करना है उसका पोटेंशियल्स के हिसाब से, उसका प्रॉब्लम के हिसाब से, बट डेफिनेटली होपलेस नहीं होना है। अगर वो डिपेंडेंट भी है तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपके लिए थोड़ा। तो आप नॉर्मली असेसमेंट करते रहते हो पीरियडिकली कि जस्ट टू इवैल्यूएट कि वो बच्चा भी आपके मास्टर के हिसाब से कहाँ तक पहुँचा? डेफिनेटली वो इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होता है। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, हम नॉर्मली शॉर्ट टर्म गोल्स ही प्लान करते हैं, एंड we sometimes fail to recognize the importance of long term planning, right, and especially what will happen once I am no more in this world, right. So that is called life after you. And one of the related aspect to it is the financial planning, right. Okay, so my question here would be, sir, how should parents plan for the financials, right, and how do they decide कि this amount is sufficient for my child after I'm no more there? Okay. इसमें आपको तरीके से समझना पड़ेगा चीज़ को कि प्लानिंग, आप जैसे अभी बच्चों को क्या ज़रूरत है, मतलब आपका बच्चा छोटा है, 2 इयर्स 3 इयर्स का बच्चे हैं, अब थेरेपी की ज़रूरत है, डेफिनेटली थेरेपीज तो कराना ही आपको, थेरेपी कराना है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि फ्यूचर प्लान भी आपको अभी से इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट से कि ये बच्चा आगे चल के क्या होगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे जो है डिपेंडेंट रहेंगे, बट डेफिनेटली आज के डेट में ऐसे भी बच्चों के लिए प्लानिंग टिपिकल नहीं भी है तो प्लान करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ प्लानिंग इस तरह के बच्चों को तो और ज़्यादा प्लानिंग होता है, क्योंकि कल को सही बात है कि अगर आप नहीं है तो और आगे कौन देखने वाला है।
तो फाइनेंशियली भी आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि थेरेपी का कितना रोल है वहाँ पे, थेरेपी का कितना इंपॉर्टेंस है उस बच्चे के लिए। कहीं अनरियलिस्टिक थेरेपी या कुछ इस तरह का थेरेपीज तो नहीं हो रही जहाँ पे आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो उस प्रेशर को भी ओवरकम करना है धीरे धीरे, और उसका प्लानिंग उस हिसाब से करना है कि फाइनेंशियली कैसे बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। कि आज से 10 साल 20 साल के बाद बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो उसको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम और देना है। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग तो इज़ वेरी नेसेसरी। आज के डेट में काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह भी आए हुए हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स को भी हेल्प मिल जाते हैं, उनको इंश्योरेंस वाले भी देते हैं। थेरेपी का जो एक्सपेंस होता है या डॉक्टर्स का जो एक्सपेंस होता है उस तरह के भी। तो आप कह रहे हो कि जब आप कॉस्ट एस्टिमेट करते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट, तो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी थेरेपी से रिलेटेड, आपके मेडिसिन से रिलेटेड, कंसल्टेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, इन सब की प्लानिंग आपको आज बैठ के ही कर लेनी चाहिए, डेफिनेटली, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको कितना मिनिमम अमाउंट आपको सेव रखना पड़ेगा अपने चाइल्ड के लिए। राइट। एंड मतलब भगवान करे आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। राइट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। ओके। एंड सर इससे से एक रिलेटेड सवाल है सर कि ठीक है, अगर पेरेंट नहीं है उसके बाद वो गार्जियन या कस्टोडियन कौन होगा मेरे चाइल्ड का? सो हाउ डू पेरेंट्स डिसाइड ऑन दैट कि वो कौन हो सकता है? और हैज़ दैट टू बी समबडी फ्रॉम योर फैमिली, or it can be somebody from outside also, or if there are certain organizations which provide such kind of services? Yeah, there are so many organizations आज की डेट में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बच्चों को कस्टोडियल होता है, वहाँ पे रखा जाता है। बहुत जगह इस तरह का चीज़ है जहाँ पे बच्चे का सारा सुविधा, पेरेंट्स वहाँ नहीं रहते हैं, बट वो है कि जहाँ पे बच्चे को थेरेपीज भी होते हैं, बच्चे को रखा भी जाता है, इस तरह का होम्स हुआ। इसके अलावा अगर आप जैसे बहुत क्लोज वन हैं तो आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह करके नहीं डिसाइड कर सकते हो कि इसका सिबलिंग इसका देखभाल करेगा। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप ऐसे कि ये तो भाई है या बहन है उसको देखेगा, कर ही लेंगे, बट इस तरह का आपको नहीं सोचना है। आपको देखना है, इट डिपेंड्स, फैमिली पे डिपेंड करता है कि कैसे उसके बारे में सोचना है आपको। और बहुत ज़्यादा जो क्लोज वन है, जो आपके बच्चे को समझ पा रहा है, डेफिनेटली आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो कि उनके ऊपर आप दे सकते हो। और देयर आर सो मेनी, आपका लीगल वो होता है कि लीगली आप किसी को इस तरह दे सकते हो, लीगल पेपर। अच्छा, वो भी ऑप्शन होता है? डेफिनेटली ये ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो जैसे करते हैं, देखते भी हैं, बच्चे को रखते हैं। और आज के डेट में है फैसिलिटीज इस तरह का है, इंडिया में भी है। अच्छा, इंडिया में भी है जहाँ पे पेरेंट्स का, इवन पेरेंट्स हैं भी, अगर वो बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा है, फैमिली में अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वहाँ पे भी देते हैं, वहाँ पे भी रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। इस करके है भी फैसिलिटीज। ओके सर। और सर इन चीज़ों के रिगार्डिंग, बीट फाइनेंशियल प्लानिंग या प्रोवाइडिंग कस्टडी टू अ चाइल्ड या गार्जियनशिप, ऐसे कोई प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो इन फील्ड्स में हेल्प करते हैं? प्रोफेशनल तो देखिए, अगर ऐसे देखें तो आपको प्रोफेशनल ऐसे हेल्प करेंगे कि आपको एडवाइस करेंगे, बिकॉज हालांकि जो मैं आपको बताया कि इस तरह का होम्स होते हैं वहाँ पे भी प्रोफेशनल ही होते हैं। जो जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है वहाँ पे भी आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी मिलेंगे, फिजियो भी मिलेंगे, और अलग अलग टीम्स मिलेंगे, कुछ डॉक्टर्स भी मिलते हैं, डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल जो आपको इस फील्ड में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो और ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, तो सारे प्रोफेशनल्स आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। सर इन चीज़ों के अराउंड कोई गवर्नमेंट की भी स्कीम या सपोर्ट सिस्टम होती है, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड केयर प्रोवाइड करती हो इन लॉन्ग टर्म, तो ऐसी कोई गवर्नमेंट की भी स्कीम होती है? देखिए, गवर्नमेंट स्कीम तो है, बट मेरे ख्याल से ये अलग ही टॉपिक है, बिकॉज इस गवर्नमेंट स्कीम का काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट में आया, ब्रॉडर एस्पेक्ट है। बट अगर शॉर्टकट में हम देखें तो डेफिनेटली सबसे पहले तो UDID कार्ड, जो मैं बहुत सारे पेरेंट्स नहीं बनाना चाहते हैं डिसेबिलिटी कार्ड की, क्यों मैं बनाऊँ? अदर उसका बहुत इंपॉर्टेंस है उस कार्ड का, और मैं सारे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि उनको बनाना चाहिए, UDID कार्ड बनाना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ जहाँ पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमको इस तरह का फैसिलिटी दिया हुआ है तो यू शुड लाइक टेक बेनिफिट ऑफ दिस। इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट के थ्रू बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे इवन जैसे आपने बताया कि बच्चों को रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हैं कुछ इस तरह का चीज़, घरौंदा और कुछ इस तरह का कुछ स्कीम्स हैं जिसके थ्रू वहाँ पे बच्चे को देखभाल भी किया जाता है, वहाँ पे टीम होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसके अलावा रेलवे वगैरह में सब जगह आपको अगर UDID कार्ड बनाते हैं तो रेलवे में भी कंसेशन है। अगर आगे बात करें तो डिसेबिलिटी पेंशन भी होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आपको हेल्प मिलता है UDID कार्ड के थ्रू। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसका, और मैं चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम है, और स्कीम आ रहा है, ऐसे नहीं, पहले भी थे, अभी और ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को इस चीज़ को
थोड़ा सा ध्यान इसके रखना बारे में चाहिए। अवेयर होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का चीज़ आ रहा है, कुछ इंश्योरेंस भी हैं जो गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस Okay. प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सर। और एक सर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनिंग डेवलपमेंटल रिकॉर्ड्स फॉर द चाइल्ड? क्योंकि सर जैसे मैंने बताया, लाइफ अनसर्टेन है, राइट? सो आपको, मेरे हिसाब से हर एक पेरेंट को कॉन्स्टेंटली, आपको पीरियडिकली उसको रिकॉर्ड्स को अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि कल को किसी के हाथ भी अगर वो लगे आपके कस्टोडियन को, तो ही विल हैव द इंटायर हिस्ट्री, या ही नोज व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट्स नॉट टू बी डन विद द चाइल्ड। इट्स वेरी नेसेसरी। डॉक्यूमेंटेशंस तो ज़रूरी है, कहीं पे भी आप जा रहे हो। हमारे पास भी जब बच्चे आते हैं तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, आप ऐसे भी देखें बर्थ हिस्ट्री और देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये इसका इंपॉर्टेंस सब जगह है। स्कूल की बात करें, कल को वोकेशनल्स, प्री वोकेशनल्स में जा रहे हैं, कोई कंपनीज में कहीं पे जॉब लग रहा है, तो एक एक चीज़ देखा है। दूसरा बात कि द प्लानिंग, लाइक ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी आपको हेल्प करता है कि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कल को कुछ लीगल एक्सपेक्ट में भी वो हेल्प करता है कि नहीं, देयर आर सो मेनी इस तरह का इशूज़ थे जिस पे अभी हम इस पे मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको। तो एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ के हिसाब से भी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है क्या सर? फॉर एग्जांपल, मेरे बच्चे को इन इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से एग्रेसिव हो जाता है, इन चीज़ों से वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है, ऐसी चीज़ें भी मेंटेन करके रखनी चाहिए क्या? ये आपको मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, जो मैनेज कर बच्चों को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो मैं भी बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, बिहेवियर इशूज़ आते हैं कि इस तरह का बच्चा कर रहा है, किसी को हिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली आप बनाओ, एक तरह से एक डायरी क्योंकि बनाओ। मैक्सिमम टाइम एक पेरेंट ही साथ में बिताता है बच्चे के। राइट। तो वो मैं बोलता हूँ किस सिचुएशन में ये कर रहा है, बिकॉज बहुत जगह ऐसा होता है कि प्योर बिहेवियर नहीं होता है, मे बी सम सेंसरी इशूज, मे बी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मे बी एस्केपिंग बिहेवियर। तो आपको देखना पड़ता है कि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। तो जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ट्रिगरिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो उस हिसाब से उस पर इंटरवेंट किया, इसलिए वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। ओके सर। Audience, with that we move to our next section, which is last section, which is advice and conclusion. So sir, we talked about the impact of modern lifestyle on comprehensive development of a child. So what lifestyle changes would you recommend? Because we talk about कि screen time वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, and that impacts the development of a child. What other lifestyle changes we should imbibe? एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट्स फर्स्ट। आज के डेट में क्या हो रहा है कि आपके पास लिमिटेड स्पेस है, एक लिमिटेड हाउस है, टाइम कंस्टेंट है। दूसरा बात कि बच्चे को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो एक तो एक्सपोजर ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सपोजर ऑफ पीपल, एक्सपोजर ऑफ ऑब्जेक्ट, सो एक्सपोजर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, थोड़ा सा वक्त निकालिए बच्चे के लिए, बिकॉज आज के डेट में वही स्क्रीन, इवन पेरेंट्स भी जब ऑफिस से भी आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मोबाइल में, तो समझो आप इस चीज़ को, बच्चे को क्वालिटी टाइम आपको देना है, अपना वहाँ पे आपको तरीके से काम करना है। अगर वीकेंड है, जैसे वीकेंड में आप बच्चे को आप उसको और ज़्यादा आप टाइम दो, आप बाहर ले जाओ, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराओ, तो थोड़ा सा इस तरह करके लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। Another important thing is सोशलाइजेशन, यस राइट। जब तक आप एक्सपोजर ऑफ पीपल नहीं होगा तो कहाँ सोशलाइज, बिकॉज इंडिविजुअली बच्चा आप अकेले घर में है, एक पेरेंट्स को देख रहा है, फोर वॉल्स के बीच में कन्फाइंड है, या डेफिनेटली। तो जब तक उसको एक्सपोजर ऑफ पीपल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से वो सोशलाइजेशंस आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट है कि इस तरह का लाइफस्टाइल आप जो है थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को, जो मुझे लगता है। तो मूव अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ऑल, राइट, एंड ब्रिंग देम इनटू द रियल वर्ल्ड। राइट। सर, वी टॉक्ड अबाउट द वोकेशनल कोर्सेज एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि वो वोकेशनल सर्विसेज में क्या क्या आता है, राइट, बच्चे उससे कैसे सीख सकते हैं, उसको एज अ फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? राइट। देखिए, इन केस ऑफ ऑटिज्म अगर बात करें तो मैं आपको बताया वेरिएशंस बहुत हैं। बहुत सारे ऑटिज्म जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होते हैं उनका एकेडमिक भी अच्छा होता है, तो अच्छा करते हैं एकेडमिक में भी, रिसर्च में भी अच्छा करते हैं, आईटी में भी अच्छा कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारा आप काम करा सकते हैं। अगर बच्चे में आपको लगता है कि नहीं उतना पोटेंशियल्स नहीं है, तो कुछ बच्चे में क्या होता है कि बहुत इजी वर्क आज के डेट में होता है कि कुछ कंप्यूटर के लिए आप कुछ उसको सिखा दो। इसके अलावा जो प्री वोकेशनल जहाँ पे ट्रेनिंग होता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस तरह के। हालांकि आज के डेट में कुछ ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ये छोटा छोटा काम करे, बट इस चीज़ को समझना जरूरी है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये छोटा काम है, अंडरस्टैंड,
कि बच्चा अगर इंडिपेंडेंट बनता है तो कम से कम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल आपको इशूज़ है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चा वहाँ पे इंगेज हो रहा है। अब अगर वो उस तरह का काम कर रहा है, छोटा काम भी है, अगर वो कर रहा है तो वहाँ पे इंगेज हो रहा है। और तो मोर सो ओवर उसको भी अंदर लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, राइट, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं है एरियाज का, जैसे आपने बताया कि किस तरह का वोकेशनल, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वो हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल, बहुत बच्चे सिंगिंग में भी जाते हैं। हाँ, आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन जो सिंगिंग, गाना गाते हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं। ऑटिज्म बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ देखो, उसको एक्सप्लोर करो। और आपने जिक्र किया सर कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो ये वोकेशनल सर्विसेज में ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है ऐसे बच्चों को। हाँ, ऐसे बच्चों को होते हैं इसमें, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं, फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं, जिसमें बच्चे को इवन वहाँ पे कैंपस सिलेक्शंस भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं कि वहाँ से बहुत सारे वो कंपनी वाले आते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसको जॉब देते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं अभी भी दिल्ली एनसीआर में। वंडरफुल सर। हाउ कैन पेरेंट्स मैनेज एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर? मी टाइम सबसे पहले तो अपना टाइम, ठीक है। बच्चे का तो आप समझ गए कि क्या करना है उसके साथ, ठीक है। अब वो टेंशन लेके कि नहीं सुबह से शाम तक हमको बच्चे को ही देखना है, वो चीज़ नहीं करना है। आपको ये देखना है कैसे आपको बैलेंस करना है चीज़ को, वर्क को कैसे बैलेंस करना है, बच्चे के साथ कितना टाइम देना है, प्लस अपना टाइम कितना देना है। क्योंकि वहीं से आपका जो इमोशंस और ये सब जो चल के आएंगे तो थोड़ा सा वहाँ से आप बैलेंस कर पाएंगे। बिकॉज आज के डेट में ये वाला है कि बहुत जल्दी पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं। दे आर सो मेनी डिप्रेसिव मदर्स आई हैव सीन कि जैसे ही वो सुन रहे हैं कि है और काम भी कर रहे हैं बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो डिप्रेशंस में चले जाते हैं। तो आपको अपना टाइम देना जरूरी है। आप फैमिली में भी टाइम दो, बच्चे को भी ले जाओ। बहुत सारे पेरेंट्स जो है कट ऑफ हो जाते हैं कि नहीं हमको पार्टी में नहीं जाना है, हमको किसी के सोशलाइज नहीं करना है, बट आप लेके जाओ, ठीक है। मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट चाइल्ड है तो शुरुआत दिनों में हेजिटेशन लगेगा, बट हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे, और दूसरा उसको बच्चे को भी फायदा है ना, उसको एक्सपोजर मिल रहा है। और भी बच्चों का एक्सपोजर, आप दौड़ने तो भागने तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ ठीक है, बट इसको भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं खुद के लिए भी टाइम आपको निकालना है फॉर बैलेंस योर इमोशन। What advice would you give to parents who feel exhausted, isolated or hopeless? सेम एडवाइस आई टोल्ड यू। एक तो कम्युनिकेट करें बहुत सारे लोगों से, लोगों इन द सेंस की क्लोजर वन से। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, आइसोलेशन से जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आइसोलेशन में जाएंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे ना, बहुत सारा इशूज आपको बच्चे में सिर्फ नेगेटिव ही दिखेगा। अगर आप आइसोलेशन में, तो बेटर है कि जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी आप डिस्कस करो बच्चे के बारे में, उसका एक पोटेंशियल, एक पॉजिटिव उसका आप समझो कि क्या उसमें पोटेंशियल्स हैं। और इसके अलावा आप मीन्स कि आपको सिर्फ उसी पे नहीं रहना है करने वाला। देयर आर सो मेनी एरियाज, जैसे बता रहा है ना कि नहीं बच्चे को इशूज हैं, बस उसी को मैं ध्यान मतलब वो कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको निकलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप मिलो जो लोग आपको समझे। उस तरह के लोगों से नहीं मिलना है जो आपके बारे में, बच्चे के बारे में कुछ नेगेटिव। तो आपके जो क्लोज वंस होंगे जिनको आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ आप कांस्टेंट टच में रहो। आप जितना आप सोशलाइज हो सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए। आप रिलैक्स रहोगे तो आपका बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय व्यू सर। एवरी पेरेंट हैज़ दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड, इवन आई हैव दिस क्वेश्चन। कुछ लोग बोल पाते हैं ओपनली, कुछ लोग थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, बट दे ऑल वांट टू नो क्या मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकता है कि नहीं बन सकता। बिकॉज for audience, I was just doing a research, I've listed down some famous personalities who are believed to be autistic, yet they are doing good have done or doing good in their life. For example, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Elon Musk, Greta Thunberg, and then the list goes on. So there are many examples who are believed to be autistic, okay, yet where they are and what they have achieved in their life. So sir, what are some of the real life inspiring stories you have witnessed yourself, sir? Yeah, I've seen, जैसे मैं आपको बताया कि मैं 15 साल 20 साल और मोर देन 20 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली उसमें जो 4 साल के बच्चे अभी 24 साल के हो गए एंड कुछ टच में है डेफिनेटली। मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत रिसेंट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अभी जस्ट 4 days बिफोर, मैं रियल एग्जांपल में बताऊँ।
बच्चा खुद कॉल कर रहा है मुझे Okay. कि आई एम दिस, नाम तो भी नहीं ले सकता हूँ, right, बट right. डॉक्टर दुबे, वो हमको डॉक्टर दुबे बोलते हैं, Okay. डॉक्टर दुबे। तो मैं बोला यस कौन, तो अपना नाम बताया। तो बोल रहा कि आप मेरा नंबर नहीं सेव किए हो। मैं बोला सॉरी, मैं भी कर लेता हूँ सेव। तो बोला कि आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट। Oh, and he was an autistic या child? डेफिनेटली, आई वाज सरप्राइज, मतलब वो बहुत दिन से वो टच में नहीं था, आई डोंट नो। तो वो मैं बड़ा खुश हुआ उसको सुन के। फिर उसके बाद फिर वो पूरा हमसे बात किया, मतलब ठीक है उस हिसाब से कर रहा था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो Proud ये moment मेरे for लिए, you हाँ, also. मैं अभी रिसेंट मैं फ्रेश आपको एग्जांपल बताया। इसके अलावा वन ऑफ द केस लाइक एक बहुत अच्छा सिंगर है हमारा, जिसको मैं देखा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हाइपर था और डायग्नोज एज एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म का ही एक पार्ट है। अभी वो गाना गाता है, बहुत सारे स्टेज पे जाके गाना गाता है, सोसाइटीज़ में कुछ फंक्शन होता है वहाँ गाता है, और बहुत अच्छा सिंगर है, और इंस्ट्रूमेंटल बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो एक और केस है, उसका भी सेम ही है कि वो स्टेज पे अभी भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे भी वो गाना गाया था। तो पोटेंशियल्स हैं, एंड आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन जो अभी आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि अगर ये डायग्नोज हो गया तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ, और डेफिनेटली मैन स्ट्रीम में भी जा सकते हैं अगर आप तरीके से उसके पोटेंशियल्स को आप समझें और उस पर काम करेंगे, तो बच्चे डेफिनेटली मैन So identifying and working on the potential, proper planning, and keeping realistic hope are the three mantras, and take away from this conversation, sir. Right. Wonderful, sir. So with that, audience, we come to a conclusion to our podcast today, and it was a wonderful discussion with Dr. Ujjwal. And thanks, sir, for again from the entire team of Specialist Stories, as well as on behalf of our audience, for having creating this environment here and having those points discussed around this topic. Audience, अगर आपको उज्ज्वल सर को reach out करना है for any guidance, you will find his contact details in the comment section along with this video below. और आप उनको कभी भी contact कर सकते हो. He'll be more than happy to help you in any capacity, whatever capacity he can. And one request from our side, from our team, that if you have liked our content or you have been liking our content, please do subscribe, because if अगर आप subscribe करके रखोगे, then any such kind of future conversation we'll have with any personality like Dr. Ujjwal, you will get notified and you will be able to see that beforehand. So please subscribe, please keep liking our videos, and also give us feedback, because we learn from your feedback, and we have traveled somewhere through in the last 3 months, and we are glad that your feedback has really helped us grow. So let those pour in, continue doing that, and that is what I can expect from you. So thanks for everything, and we'll come again with a new podcast on yet another interesting topic that will be helpful for any a special parent as well as therapist. Till then, be safe, be happy, and good luck. Namaskar. Thank you.